Assalamu alaikum students, this is Abdul Iqbal. I hope you are fine. Today we are going to perform the practical A-level physics. Our paper code is fuel number 16, variant 33. The question number 2 we are going to perform. In this practical we will investigate the motion of an oscillating mass. The apparatus that we are going to use in this practical consists of stand, spring, stopwatch, G-clamp and different masses. We will calculate the time period. For the calculation of the time period, the number of oscillation is up to you. How many number of oscillation you are taking. Suppose you are taking number of oscillation 5 or 10, then you have to find the time for 10 oscillation T1 and time T2 for the 10 oscillation, and then you have to find out the average of this time, and then for the time period using the formula T is equal to T average divided by N. Next we have to find out to calculate the value of L. Using the formula, we have the formula L is equal to G T square over pi square. We have to put the values G and T. We can calculate the value of L. But in this value, we have to take care about the significant figures. We have to justify the number of significant figures in the value of L. In the value of L, we have to justify the number of significant figures. For this, we have to calculate the number of significant figures in the value of G. Suppose G has 3 number of significant figures, and we have to also check out the number of significant figures in the value of T. Suppose T has also 3 number of significant figures, then what will be the number of significant figures in the value of L? Then it should have also 3 number of significant figures. In the next step, we have to find the percentage uncertainty in the value of D. What will be the percentage uncertainty in the value of D? Percentage uncertainty is equal to absolute uncertainty divided by molecular value multiplied by 100. Its formula is delta D divided by D multiplied by 100. So this is the percentage uncertainty we have to find out in the value of D, which is the length. Next, we have to find out the two values of K. One is K1 and other is K2. We have to find the two set of readings. We have to calculate the two sets of reading. So we have to find the first value of K, which is the K1, and the other value of K, which is the K2. From these values, we have to calculate the percentage uncertainty in these values of K. Using the formula, we have the formula percentage uncertainty in K is equal to K1 minus K2 divided by K mean multiplied by 100. We have two conditions for this percentage uncertainty in the value of K. Percentage uncertainty in K is less than 20%. If the percentage uncertainty is less than or equal to 20%, then our result will support our suggested relationship. Percentage uncertainty in K is greater than 20%, then our result does not support our suggested relationship. प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स में हमारे पास ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ ये बॉस है और ये क्लैंप है, और ये क्लैंप का रॉड है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे जी क्लैंप यूज करेंगे ताकि जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके। इसके अलावा हम इसके अंदर स्टॉपवॉच इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मैसेज हैं। अब मैसेज में सबसे पहले आपने जो रेडिंग लेनी है उसमें 300 ग्राम मैस यूज होगा, तो 300 ग्राम मैस के लिए हमारे पास 200 ग्राम के मैसेज हैं और इसके अलावा 100 ग्राम का मैस हैंगर है। इसके अलावा जब हम दूसरी रेडिंग लेंगे तो उसके लिए हम मजीद जो है वो 100 ग्राम का मैस एक और ऐड करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम स्प्रिंग यूज करेंगे
और इसके अलावा स्ट्रिंग जो है यूज होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने स्प्रिंग को जो है वो इस रॉड के साथ हैंग कर लेना है इस तरह से। अब उसके बाद आपने 300 ग्राम मैश यूज करना है जो कि हम स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे। तो जैसे ही हमने स्प्रिंग के साथ मैश को अटैच किया है तो आपने थोड़ा सा हल्का सा जो है इसको पुश करना है। पुश करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। जब आप छोड़ेंगे तो इसकी जो वर्टिकल ऑसिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है उसमें आपने टाइम फाइंड करना है। अब इसमें टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे, उसमें हम 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो लेंगे। आप 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा हमें इसको पुश करना है। पुश करने के बाद हल्का सा जो है वो पुश करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो आप जैसे छोड़ेंगे तो इसकी वर्टिकल ऑसिलेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो T1 पहले फाइंड करेंगे 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको पुश करके छोड़ते हैं और साथ में हम स्टार्ट का जो बटन है वो प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम आ चुका है। तो ये T1 जो टाइम है वो मेरे पास आया है 7.18 सेकंड। तो 7.18 सेकंड T1 है वो हमारे पास आ चुका है। अब इसी तरह से आपने इसी को दोबारा रिपीट करना है और आपने टाइम जो है वो T2 फाइंड करना है 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए। तो अब T2 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो टाइम है वो T2 आ चुका है 7.14 सेकंड। तो अब हमने जो है वो इनकी एवरेज लेनी है। तो 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो हमने जो है वो यहाँ पे ली हुई है और T1 जो हमारे पास आया है 7.18 सेकंड और T2 जो है 7.16 सेकंड। अब हमने जो है वो इनकी एवरेज लेनी है। तो एवरेज लेने के बाद हम जो है वो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे और साथ में जो है उसमें हम टाइम पीरियड जो है वो निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ है कि जब आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो उसके बाद आपने जो कैलकुलेशन करनी है उसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले में आपने टाइम पीरियड T की वैल्यू और साथ में G की वैल्यू और साथ में जो पाई की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो आपका जो है वो लेंथ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। हमारे पास टाइम पीरियड T की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हमने कर ली हुई है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आई है 0.716 सेकंड। तो इसके अलावा हमने लेंथ की जो वैल्यू कैलकुलेट की है फार्मूला को यूज़ करते हुए, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है 0.510 मीटर में हमने कैलकुलेट की है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑपरेटर्स को कुछ इस तरह से सेट करना है कि आपने स्प्रिंग के साथ आपने एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच करनी है। स्प्रिंग है, साथ में हमने ये स्प्रिंग जो है वो अटैच करनी है और उसके साथ हमने मैश हैंगर को जो है वो हैंग करना है। तो अब आपने इसमें एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो L की वैल्यू आई थी 0.510 मीटर। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है यहाँ से लेकर मैसेज के सेंटर तक आपने देखना है कि ये उतना ही होना चाहिए जितना कि L की वैल्यू है। ये डिस्टेंस D है, यहाँ से लेकर जो है इसके सेंटर तक के जो डिस्टेंस है वो D है और ये आप उतना ही लेंगे जितनी आपके पास L की वैल्यू है। अब L की वैल्यू 0.51 मीटर आई है तो इट मीन्स कि 0.51 मीटर ही आप वैल्यू है वो स्ट्रिंग की टॉप से लेकर मैसेज के सेंटर तक लेंगे। अब उसके बाद आपने जो काम करना है, अब उसमें आपने जो है वो डिस्टेंस D जो है वो फाइंड करना है और उसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस D जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ D हमने फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने
देखना है कि आपने ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स है इसमें जो आपका ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगी हुई है और साथ में ये मैसेज है। अब आपने इस मैसेज को जो है 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके आपने इसको छोड़ देना है। तो 10 सेंटीमीटर की फासले पे जो है आपने इसको डिस्प्लेस करना है। तो यहाँ से जो है वो आपने 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर बनते हैं, तो यहाँ तक आपने इसको जो है वो डिस्प्लेस करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो अब आपने इस मैसेज की जो ऑसिलेशन है उसको आपने इग्नोर करना है, जस्ट आपने स्प्रिंग को देखना है। अब स्प्रिंग आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब इनकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी तब तक का हमें जो टाइम है वो फाइंड करना है। जब हमने इसको छोड़ा था और जब इनकी जो मूवमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है, मतलब कि इनकी जो अप एंड डाउन मूवमेंट है वो खत्म हो गई है, तब आप इसका जो है वो टाइम फाइंड करेंगे। तो स्टॉप वॉच है हमारे पास, तो 10 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस था उस तक डिस्प्लेस करने के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तब हमने जो है वो स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी है। और जब स्प्रिंग की जो लूप्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाए तब हमने जो है वो टाइम उसके दौरान जो टाइम था वो कैलकुलेट कर लेना है। स्प्रिंग को थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि जो मैसेज है वो इससे ज्यादा अटैच ना हो। अब आपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर का लेकर आपने इसको डिस्प्लेस करना है और आपने स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर लेनी है। तो जैसे ही हम इसको जो है वो छोड़ेंगे तो आपने जो है वो स्टार्ट के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। अब आपने वो टाइम फाइंड करना है इस दौरान स्प्रिंग के जो लूप्स हैं उनकी जो वर्टिकल मोशन हो रही है वो खत्म हो जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाए। तो नॉर्मल हालत में आने तक के लिए जो टाइम था हमारे पास हम वो कैलकुलेट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग की जो लूप्स हैं वो अभी भी अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है। तो जब तक इनकी जो मूवमेंट है वो खत्म नहीं हो जाती तब तक का जो टाइम है वो हम फाइंड करेंगे। स्टॉप वॉच हमने ऑन की हुई है और आप देख रहे हैं कि जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो अभी भी है वो मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आ चुका है इस टाइम, तो वो हमारे पास है 4.33 सेकेंड। तो 4.33 सेकेंड का जो टाइम है वो हमने जो है वो कैलकुलेट किया है। अब उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी तक जो हमने रीडिंग ली है ये फर्स्ट रीडिंग ली थी हमारे पास। अब हमने दोबारा फिर आपने जो स्ट्रिंग है उसको रिमूव करने के बाद ये दोबारा फिर जो प्रोसेस है वो आपने करना है, लेकिन इसमें अब जो इजाफा होगा वो उसमें आप एक मैस और ऐड करेंगे। पहले हमने 300 ग्राम का जो मैस था वो ऐड किया था, अब हमने 100 ग्राम का जो मैस है वो मजीद ऐड करेंगे। तो टोटल हमारे पास जो है वो 400 ग्राम का मैस जो है वो उसमें ऐड होगा। और ये तमाम कैलकुलेशन जो हमने जो है वो दोबारा स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट के लास्ट पार्ट में हमने 4 लिमिटेशन बतानी है और साथ में हमने 4 उनकी जो है इम्प्रूवमेंट्स बतानी है कि इस प्रैक्टिकल में हमने कौन कौन से जो है वो लिमिटेशंस थी और साथ में उनके इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सेट्स ऑफ रीडिंग जो आपने ली हुई थी वो इनफ नहीं है। तो 2 सेट्स ऑफ रीडिंग इज नॉट इनफ, तो उसकी बजाय आप 6 सेट्स ऑफ रीडिंग लेंगे और साथ में है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आप ये लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग था वो इस रॉड के अलॉन्ग मूव कर रहा था। जब हमने ये प्रैक्टिकल किया तो तब आपने देखा कि ये जो स्प्रिंग था इसकी मूवमेंट जो थी इस रॉड के अलॉन्ग थी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बेहतर करने के लिए आप ब्लू टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लू टैग लगाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, तो ज़्यादा आप इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे जो है आप ये लिख सकते हैं कि जो सेपरेशन थी, स्प्रिंग की जो सेपरेशन थी जो कि हमने ऑब्जर्व करनी थी कि स्प्रिंग जो है वो कब जाके कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट पे आता है, तो अब वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब
अब उसकी बजाय आप इसमें वीडियो यूज़ कर सकते हैं या फिर व्यू फ्रेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको जो है वो आप प्रॉपरली देख सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने यहाँ पे मैथ्स लिखेंगे। मैथ्स हमने लिया हुआ था 300 ग्राम। तो उसके बाद आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड में हमने जो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन ली हुई थी वो 10 थी। तो उसके बाद T1 फाइंड किया तो 7.18 सेकेंड आया। इस तरह जो टाइम था T2 फॉर 10 नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन के लिए 7.14। उसके बाद एवरेज फाइंड की। तो एवरेज फाइंड करने के बाद जो है वो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो यूज़ किया, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया 0.716 सेकेंड। इसके बाद आपके पास एक फार्मूला है L=GT²/π²। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपने L फाइंड करना है। तो L हमारे पास आया है 0.510 मीटर में। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो लेंथ है वो मीटर में ही आपने निकालनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है वो बताया हुआ है कि आपने मीटर में निकालनी है। उसके बाद आपने जस्टिफाई करना है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वैल्यू ऑफ L। अब L की वैल्यू, अब L आप अगर फार्मूले में देखें तो इस फार्मूले में आपको G और T नज़र आ रहा है। तो G में और T में हमने दोनों में देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब G में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और T में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए जो है हम L में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये डिस्टेंस आपको जो नज़र आ रहा है फिगर में, तो आपने ये डिस्टेंस D मतलब कि फ़ाइंड किया। तो फाइंड करने के बाद आपके जो पास आया है वो D1 0.512 मीटर और D2 जो है वो 0.510 मीटर आया। अब हमने इनकी एवरेज ली है तो ये हमारे पास डिस्टेंस D आ गया। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड की है इन द वैल्यू ऑफ D। तो फार्मूले को यूज़ किया हमने। तो इसके बाद हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 0.002 रखी और जो D थी मेजर्ड वैल्यू 0.511 और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 0.39% हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है। अब नेक्स्ट आपने जो है वो टाइम फाइंड करना था कि जिस टाइम के दौरान जो मैच था वो बिल्कुल अपने रेस्ट की हालत में आ जाता है और जो स्प्रिंग था उसके जो लूप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो वो हमने टाइम फाइंड किया तो वो आया हमारे पास 4.33 सेकेंड। अब ये हमने फर्स्ट रीडिंग ली हुई थी। अब सेकेंड रीडिंग में आपने जो है वो स्ट्रिंग को रिमूव कर देना है और मैथ आपने अब जो यूज़ करेंगे वो 400 ग्राम होगा। पहले हमने 300 ग्राम यूज़ किया, अब हम 400 ग्राम यूज़ करेंगे। तो ये तमाम कैलकुलेशंस हम दोबारा करेंगे। तो अब मैथ्स जो रीडिंग में जो मेरे पास आई है 400 ग्राम मैथ्स और टाइम पीरियड जो है 0.818 सेकेंड। इस तरह लेंथ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, D की वैल्यू कैलकुलेट की है और T जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है 5.27 सेकेंड आया। अब उसके बाद आपको एक रिलेशन जो है वो दिया जाता है जिसमें आपने K की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको दिया हुआ है T=KM। तो K यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसमें आपने दो वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, K1 और K2 फाइंड करना है। तो इसमें आपने क्योंकि आपने दो रीडिंग ली हुई थी तो लिहाजा M1 जो आपने फ़र्स्ट लिया हुआ था 300 ग्राम और T जो है 4.33 सेकेंड फर्स्ट रीडिंग के लिए, तो ये आपके पास K1 आ गया अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसी तरह आप जो है वो K2 फाइंड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा जाता है कि आया कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी सजेस्टेड रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है या नहीं। तो आप यहाँ पे जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ K। तो डेल्टा K और K मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाय K मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला यूज़ किया हमने, वैल्यूज पुट की, तो ये आपके पास आ गई 8.7%। तो इट मीन्स कि ये लेस दैन 20% है। तो इसलिए आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सजेस्टेड रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल के लास्ट क्वेश्चन में। तो इस लास्ट पार्ट में आपसे जो है 4 लिमिटेशंस पूछी जाती हैं और 4 जो है उनकी इम्प्रूवमेंट्स पूछी जाती हैं। तो टोटल जो है ये 8 मार्क्स का होता है।
तो इसमें फ़र्स्ट में आप लिख सकते हैं कि आपने जो 2 रीडिंग ली हैं वो काफ़ी नहीं हैं, तो इसके बजाय आप जो है वो 6 सेट्स ऑफ रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि आपने जो डी फाइंड किया है, डी मेजर किया है, वो उसको मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंसिबल है। ठीक है, कि दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। इस तरह थर्ड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जो आपने स्प्रिंग लिया हुआ था उसकी जो कॉइल्स थी उनके दरमियान जो डिस्टेंस जिस पे वो जाके कांस्टेंट हो जाता है वो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल था, तो उसकी बजाय उसमें आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं ताकि वीडियो में जो है वो आप इजीली उसको पॉज करके देख सकें। अब फोर्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग था वो रॉड के अलॉन्ग मूव कर रहा था, तो उसमें आप ब्लू टैग यूज़ कर सकते हैं ताकि जो मोशन है स्प्रिंग की उसको रोका जा सके।